Dear students, today we are going to discuss an atmosphere of spheres. Question is this: what is the meaning of an atmosphere of spheres? Here, the topic which we have to study many words ends with a sphere, having no meaning related with a sphere. Many words ends with a sphere, having no meaning related to a sphere. Means as there are so many words, that's why here topic is an atmosphere of a sphere, right? There are many words in the scientific vocabulary which ends with a sphere, although they have no link with the spherical shape. Given below are the clues which describe these spheres ending words. Use the help box and write the correct word for each description given. Number 1 is an imaginary line. An imaginary line called equator divides the earth into two equal halves. तो वह जो दो हाफ में बांटा जाता है उसका क्या नाम है? Then answer is hemisphere. This very hemisphere word is ending with a sphere, but it has no meaning related with a sphere, right? Number 2, the waters of earth surface. जो अर्थ सरफेस का वाटर है, अर्थ सरफेस पर जो वाटर है उसके लिए एक आता है नेम हाइड्रोस्फीयर, राइट? Number 3, a spherical strong steel vessel used for deep sea observation. A spherical strong steel vessel used for deep sea observation is your bathysphere. Number 4 is a layer of atmosphere extending 1000 km above the surface of the earth, which reflects radio waves. अर्थ सरफेस से 1000 किलोमीटर दूर ऊपर जो है एटमॉस्फेयर का वह लेयर जो कि रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करके लौटा देता है फिर अर्थ पर. नेम ऑफ दैट वेरी रीजन इज आयनोस्फेयर, राइट? नंबर 5, the upper layer of the earth mantle, whose capacity for gradual flow is thought to give rise to continental drift. Answer is asthenosphere. Next is number 6, the region of earth's crust and atmosphere occupied by living organism. वह रीजन जो कि अर्थ क्रस्ट और हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके बीच में लाई करता है और जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, दैट वेरी रीजन इज नोन एज बायोस्फीयर, राइट? नेक्स्ट इज योर क्रस्ट ऑफ द अर्थ. अर्थ का जो जिसको अर्थ क्रस्ट कहते हैं उसको क्या नाम देते हैं? देन वी गिव नेम लिथोस्फीयर, राइट? नेक्स्ट, the layer of atmosphere nearest to earth in which weather changes occur. हमारा एटमॉस्फेयर का वह रीजन जिसमें कि एटमॉस्फेयर चेंज होता है वह विजिबल होता है, उस रीजन का क्या नाम है? देन वी यूज टू से दैट वेरी रीजन इज ट्रोपोस्फेयर, राइट? नाउ कम ओवर नेक्स्ट. In next, we have to fill. We have clues is given across puzzle and down puzzle. Clue is given, but we have write one word for that. Number 1, it is exerted by the earth, which makes getting into a space difficult. वह चीज़ जो कि अर्थ सरफेस के द्वारा एग्जर्ट किया जाता है, लगाया जाता है और जिसके चलते हम लोग स्पेस में नहीं जा पाते हैं. नेम ऑफ दैट वेरी फिनोमेना इज ग्रेविटी, राइट? नेम ऑफ दैट वेरी फिनोमेना इज ग्रेविटी, राइट? सी दिस वेरी ग्रेविटी. नेक्स्ट, a small sealed and pressurized cabin
a small sealed and pressurized cabin with an acceptable environment often used for sending man or animal into space. वह केबिन, वह सील्ड केबिन, वह प्रेशराइज केबिन जिसमें कि स्पेसशिप से ह्यूमन बींग को या एनिमल को भेजा जाता है, दैट वेरी केबिन इज नोन एज ऑर्बिटर, ORBITER, राइट. नंबर 3, it is known to be the most dangerous hazard in a space flight, that is your fire. Number 4 is it is in front of the orbiter. It is in front of the orbiter in a space shuttle where a crew members works and live. वह रीजन स्पेसशिप के वह रीजन में जिसमें कि उसके चालक दल जो है रहते हैं और काम करते हैं, उस रीजन को वी यूज टू से दैट वेरी रीजन इज कॉकपिट. दैट वेरी रीजन इज कॉकपिट, राइट. दैट वेरी रीजन इज कॉकपिट. नेक्स्ट, इट इज डिटेचेबल कंपार्टमेंट ऑफ स्पेसक्राफ्ट. स्पेसक्राफ्ट का वह पार्ट जो कि टूटता है, जो कि टूट करके अलग होता है. नेम ऑफ दैट वेरी कंपार्टमेंट इज कैप्सूल. दैट वेरी पार्ट इज कैप्सूल, राइट. नेक्स्ट, अ डिवाइस डिजाइन टू सप्लाई एंड होल्ड अ मिसाइल इन पोजिशन ऑफ फायरिंग. वह मशीन जिस पर कि जो है हम लोग मिसाइल को रख करके फायर करते हैं, जिस पर दैट नेम ऑफ दैट वेरी डिवाइस इज लॉन्चर, LAUNCHER, राइट. नाउ कम ओवर डाउन वाले पजल में आप आइए. नंबर 7, दिस स्पेस शटल got disintegrated into pieces while re-entering the Earth's atmosphere on 1st February 2003. वह स्पेसशिप जो कि स्पेस में गया और जब लौट करके फिर अर्थ एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा था, उस समय यह टूट कर जो है टुकड़े टुकड़े में बट गया. नेम ऑफ दैट वेरी स्पेसशिप इज कोलंबिया. नेम ऑफ दैट वेरी स्पेसशिप इज कोलंबिया, राइट. नेक्स्ट, a garment designed to allow an astronaut to survive in space. A garment designed to allow an astronaut to survive in space. वह गारमेंट, स्पेशल गारमेंट जिसको बनाया गया है, जिसपे कि जो है एस्ट्रोनॉट जो होते हैं, जो स्पेस में जाते हैं, स्पेस में आराम से रह लेते हैं. नेम ऑफ दैट वेरी सूट इज अ स्पेस सूट. नेम ऑफ दैट वेरी सूट इज अ स्पेस सूट, राइट. नंबर 9, दिस इज द बिगेस्ट रॉकेट एवर बिल्ड. अभी तक का जो है सबसे बड़ा रॉकेट जो बनाया गया है. नेम ऑफ दैट वेरी रॉकेट इज सैटर्न 5, राइट. नेम ऑफ दैट वेरी रॉकेट इज सैटर्न 5. नंबर 10, इट इज अ चेकअप टाइम बिफोर अ स्पेसक्राफ्ट in launched from the earth. It is the checkup time before a spacecraft to launch from the earth. अर्थ सरफेस से किसी भी स्पेसक्राफ्ट को भेजने के पहले वह टाइम को क्या कहते हैं, जबकि भेजने की शुरुआत होने वाली होती है, उसको हम लोग कहते हैं दैट वेरी टाइम इज नोन एज काउंटडाउन टाइम, और कहते हैं काउंटडाउन शुरू हो गया है. नेक्स्ट, नंबर 11, ऑन सक्सेसफुल री एंट्री इनटू द अर्थ एटमॉस्फेयर. On successful re-entry into the Earth atmosphere, the orbiter flies like an aeroplane, right. Next, this is the powerful space telescope. Launched by America in 1990. That very telescope is your Hubble, HUBBLE. Next, number 14, it is a spacecraft sent on missions to study various bodies in the solar system. सोलर सिस्टम में स्टडी करने के लिए जिस स्पेसशिप को भेजा जाता है उसको क्या कहते हैं, then that very thing is known as a space probe. And last one is it is used as a fuel along with liquid oxygen
in a space shuttle. It is used as a fuel along with the liquid fuel, liquid oxygen in a space shuttle. मीन्स जो है वह फ्यूल जो लिक्विड ऑक्सीजन के साथ, वह लिक्विड जो कि लिक्विड ऑक्सीजन के साथ यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में स्पेस शटल में, उसको क्या कहते हैं? देन वेरी लिक्विड इज नोन एज हाइड्रोजन, और यू कैन से लिक्विड हाइड्रोजन, राइट? नाउ कम ओवर एक्सप्लोर द साइंसेस. साइंस की खोज करें. देयर आर डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ साइंस डीलिंग विद डिफरेंट फील्ड. हर एक फील्ड में जो हम लोग साइंस स्टडी करते हैं तो उस हर एक फील्ड का अलग अलग नाम है. रीड द गिवन डिस्क्रिप्शन, जो दिया गया है नीचे व्याख्या, उसको ध्यान से पढ़िए. एंड अनजम्बल द लेटर्स टू गेट द करेक्ट आंसर. और उस डिपार्टमेंट के उस फैकल्टी को क्या कहेंगे? अनजम्बल्ड वर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको करेक्ट करके लिखना है, राइट? नंबर 1, साइंस कंसर्निंग द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स अराउंड थ्रू एयर. वह साइंस जिसमें कि हम लोग स्टडी करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को, एयर में मूवमेंट को जो स्टडी करते हैं, दैट वेरी नोन थिंग इज नोन एज एरोनॉटिक्स. दैट वेरी थिंग इज नोन एज एरोनॉटिक्स, राइट? नेक्स्ट, साइंस गवर्निंग ट्रेवल इन स्पेस. वह साइंस जिसमें स्पेस के स्टडी को हम लोग स्टडी करते हैं, दैट वेरी स्टडी इज नोन एज एस्ट्रोनॉटिक्स. दैट वेरी स्टडी इज नोन एज, और दैट वेरी ब्रांच ऑफ साइंस इज नोन एज एस्ट्रोनॉटिक्स. नंबर 3, साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इन द लार्ज पॉपुलेशन. लार्ज पॉपुलेशन में कोई डिजीज फैलता चला जा रहा है तो उसके जो स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं? देन दैट वेरी थिंग इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी. दैट वेरी थिंग इज नोन एज एपिडेमियोलॉजी, राइट? साइंस दैट डील्स विद द पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ आउटसाइड द अर्थ. वह साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं अर्थ से बाहर लाइफ के एग्जिस्टेंस को, दैट वेरी थिंग इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी. एक्सटर्नल बायोलॉजी, यू कैन से एक्सोबायोलॉजी, राइट? नेक्स्ट, नंबर 5, बायोलॉजिकल साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू. वह बायोलॉजिकल साइंस जिसमें टिश्यू का स्टडी करते हैं, दैट वेरी थिंग इज नोन एज हिस्टोलॉजी. उसको क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी. नेक्स्ट इज योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद द मेकिंग एंड वर्किंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोबोट्स. रोबोट्स जो होते हैं उसके स्टडी जो करते हैं उसका जो साइंस कहलाता है वह कहलाता है रोबोटिक्स. ROBOTICS. नंबर 7, साइंस विच डील्स विद द अकरेंस, लोकेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थक्वेक. वह साइंस का ब्रांच जिसमें हम लोग अर्थक्वेक के बारे में स्टडी करते हैं, दैट वेरी ब्रांच इज नोन एज सिस्मोलॉजी, राइट? नंबर 8, साइंस विच डील्स विद द स्टडी रिलेटेड टू इफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी. साइंस विच डील्स विद द स्टडी रिलेटेड टू इफिशिएंट यूज ऑफ ह्यूमन एनर्जी, right? Science which deals with the study related to efficient use of human energy. वह साइंस का डिपार्टमेंट जिसमें ह्यूमन एनर्जी का स्टडी करते हैं, उसके इफिशिएंट यूज का स्टडी करते हैं, दैट वेरी ब्रांच इज नोन एज एर्गोनॉमिक्स, राइट? नेक्स्ट इज नंबर 9, साइंस दैट डील्स विद द कॉजेशन ऑफ अ डिजीज. बीमारी का पता लगाना कि उसका क्या कारण है, दैट वेरी ब्रांच इज नोन एज ईटिलॉजी. दैट वेरी ब्रांच इज नोन एज ईटिलॉजी. एंड नेक्स्ट वन, साइंस विच डील्स विद द पासिंग ऑन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग. वो साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम लोग यह पढ़ते हैं कि बाप का गुण बच्चे में जाता है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? देन सिंपली वी यूज टू से दैट वेरी ब्रांच इज जेनेटिक्स, right? Now go to next page. Your next page is dreaded diseases. Dreaded disease means भय, डर,
डरावना, वह डिजीज जो कि डरा दे, भय पैदा कर दे, राइट। देन नाउ कम हेयर, वी यूज टू से हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, बट सिकनेस इज अ कर्स, सिकनेस इज अ कर्स, कर्स मीन्स अभिशाप, लेकिन अगर बीमारी हो जाती है तो वह अभिशाप कहलाता है, राइट। गुड हेल्थ इज नेसेसरी फॉर आवर पर्पसफुल एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, हम स्वस्थ रहें, वह इस दुनिया में रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है। गिवन बिलो आर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सम डिजीजेज अफेक्टिंग अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेज दिए गए हैं, जिसमें और उसमें कौन सा पार्ट अफेक्ट होता है वह भी दिया गया है। यूजिंग द हेल्प बॉक्स फाइंड एंड राइट द नेम ऑफ द डिजीजेज इन द स्पेस प्रोवाइडेड, राइट। देन नाउ कम ओवर नंबर वन को क्या कह देंगे, पहला देख लीजिए, इट इज़ अ डिजीज अफेक्टिंग ब्रेन, इट इज़ अ डिजीज अफेक्टिंग ब्रेन कॉजिंग प्रॉब्लम विद मेमोरी, थिंकिंग एंड बिहेवियर, वह बीमारी जो कि दिमाग से रिलेटेड होता है, ब्रेन से रिलेटेड होता है, और अगर वो बीमारी हो जाएगा तो आपका मेमोरी, यादाश्त शक्ति कम हो जाएगी, सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी, आपका व्यवहार बदल जाएगा। नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज अल्जाइमर, राइट, नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज अल्जाइमर। नंबर 2, इट इज़ अ डिजीज इन विच द पेशेंट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर, यह एक ऐसा बीमारी है जो कि रेड और ग्रीन कलर में आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन रेड है कौन ग्रीन है, कभी आप रेड को ग्रीन कह देंगे, ग्रीन को रेड कह देंगे। इट मीन दैट रेड सिग्नल है तो हो सकता है आप जो है ट्रेन के ड्राइवर हैं तो ट्रेन खुलवा देंगे ग्रीन सिग्नल समझ करके, ये प्रॉब्लम होगी। तो उस डिजीज को क्या कहते हैं, नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, उस पर्टिकुलर कलर के लिए आप ब्लाइंड हो जाएंगे, दैट्स वाई नेम इज कलर ब्लाइंडनेस, राइट। नाउ कम ओवर नंबर 3, इन दिस डिजीज, सी हियर दिस वेरी डिजीज इज रिलेटेड विद माउथ, इन दिस डिजीज देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम स्वेलन गम्स, मेरे मसूड़ों से, फूले हुए मसूड़ों से जो है खून निकलता है, विच लीड्स टू लूजनिंग ऑफ टिथ, और जिसके चलते मेरे दांत धीरे धीरे लूज होते जाते हैं। नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज पायरिया, नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज पायरिया, नाम सुने होंगे पायरिया का। नंबर 4, in this disease upper respiratory tract is affected and initial symptoms indicates common cold, sore throat and high fever, यह ऐसा बीमारी है जिसमें कि आपको हल्की फीवर आएगा, खांसी आएगा, गले में खराश होगा, but this very disease is very dangerous. Name of the disease is SARS. Number 5, it is a viral disease, यह वायरल डिजीज है विद फीवर, जिसमें फीवर आता है, जॉन्डिस होता है, ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो एंड इज ऑफन फैटल। नेम ऑफ दिस वेरी डिजीज इज येलो फीवर, नेम ऑफ दिस वेरी डिजीज इज येलो फीवर, राइट। नेक्स्ट नंबर 6, इट इज अ डिजीज इन विच मसल्स बिकम वीक, हमारे मसल्स कमजोर हो जाते हैं। नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज मायोपैथी, नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज मायोपैथी। नंबर 7, इट इज़ अ फंगल फुट कंडीशन अफेक्टिंग द स्किन बिटवीन द टूज, यह जो है बीमारी पैर के उंगलियों के पास होती है, दो उंगलियों के बीच का जो स्किन होता है वह अफेक्टेड होता है। एंड नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज एथलीट्स फुट, नेम ऑफ दैट वेरी डिजीज इज एथलीट्स फुट। नाउ कम ओवर नेक्स्ट नंबर 8, इट इज़ अ डिजीज दैट मेक्स बोन्स ईजी टू ब्रेक, यह एक ऐसा बीमारी है जिसमें कि बोन्स आपके कमज़ोर पड़ जाते हैं। एंड नेम ऑफ द डिजीज इज ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, राइट, ओके।